Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Jina Competitive Academy. I am Professor Shoaib Mirza. Today we will cover the last three chapters of marketing. तो आइए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 18 है, that is about creating competitive advantage. तो आजकल जो कंपनीज हैं उनको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, टुडेज कंपनीज फेस देयर टफेस्ट कंपटीशन एवर. सबसे बड़ी बात है कंपटीशन को. इन प्रीवियस चैप्टर वी आर्ग्यू that to succeed in today's fiercely competitive marketplace, companies must move from a product and selling philosophy to a customer and marketing philosophy. ठीक है, पहले तो होता था कि आप प्रोडक्ट बनाएं और उसको बेच दें. अब आप क्या करते हैं, कस्टमर एंड मार्केटिंग फिलॉसफी को फॉलो करते हैं. आप कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको बेस्ट सोल्यूशन पेश करते हैं. This chapter spells out in more detail how companies can go about outperforming competitors to win, keep, and grow customers. To win in today's marketplace, companies must become adept mahir, not only in managing product but also in managing customer relationship in the face of determined competition and difficult marketing environment. Understanding customer is crucial, but it's not enough. Building profitable customer relationship and gaining competitive advantage requires delivering more value and satisfaction to target customers than competitors do, right? तो अगर हम देखें डेफिनेशंस की हद तक, competitive advantage क्या होता है. लेफ्ट साइड पे an advantage over competitor gain by offering कंज्यूमर ग्रेटर वैल्यू. आप ग्रेटर वैल्यू जब प्रोवाइड करते हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है या मोर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनती है. ठीक है, तो कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है, आइडेंटिफाइंग की competitors, assessing their objectives, strategies, strength, weaknesses, reaction patterns, selecting which competitors to attack और किससे आपने अवॉइड करना है, ये आप competitor analysis करते हैं. फिर competitive marketing strategies that strongly position the company against competitor and give it the greatest possible competitive advantage, ये आपकी competitive marketing strategies हैं. ठीक है, competitors का analysis आप कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं. जब आप competitor का analysis करते हैं, कहते हैं to plan effective marketing strategies, a company needs to find out all it can about its competitor. It must constantly compare its marketing strategies, product, price, channel promotion with those of the close competitors. In this way, company can find areas of potential competitive advantage and disadvantage. ठीक है, तो ये कुछ आगे हम स्टेप्स देखेंगे. इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले करते हैं, आप अपने कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, द कंपनीज कंपेटिटर. फिर आप एक्सेस करते हैं उसको, कंपनी उस कंपेटिटर्स के ऑब्जेक्टिव्स को, उसकी स्ट्रेटजीज को, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जो स्वॉट एनालिसिस करते हैं. फिर आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने विच कंपेटिटर्स को, किस कंपेटिटर को आपने अटैक करना है, उसकी स्ट्रेटजीज को, और किससे आपने अवॉइड करना है. बेंचमार्किंग का यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में पढ़े हैं. ठीक है, कस्टमर वैल्यू एनालिसिस देख लीजिएगा. ये मार्केटिंग की कुछ टाइप बता रहे हैं. Approaches to marketing strategy and practice often pass through three stages हैं. Entrepreneurial marketing, formulated marketing और आपके पास आती है intrapreneurial marketing. जब entrepreneurial marketing आती है तो कहता है कि most companies are started by individuals who live by their wits.
They visualize an opportunity, construct flexible strategies on the back of envelope, and knock on every door to gain attention. In the end नहीं है फार्मूलेटेड स्ट्रेटजी में क्या कहता है फार्मूलेटेड स्ट्रेटजी में कहता है कि small companies achieve success, they inevitably move toward more formulated marketing. They develop formal marketing strategies and adhere to them closely. Their entrepreneurial marketing have many large and mature companies get stuck in formulated marketing. They pour over the latest नंबर छोड़ दें इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे मेन चैप्टर थे जो गुजर गए हैं इम्पोर्टेंट अब ये जस्ट छोटी छोटी ही है मार्केट लीडर क्या है कि जो आपका कंपेटिटर जो लीड कर रहा है जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा है अ फर्म इन एन इंडस्ट्री विद द ग्रेटेस्ट मार्केट शेयर ठीक है मार्केटर Challenger कौन है a runner-up firm that is fighting hard to increase its market share in the industry में जो अपना market share increase करने की कोशिश करता है market follower कौन होता है a runner-up firm that wants to hold its share in an industry without rocking the boat फिर market नेचर है इसको छोड़ दे अच्छा यहाँ पे बताता है कि बैलेंसिंग कस्टमर एंड कंपेटिटर ओरिएंटेशन तो इवेल्युएटिंग कंपनी ओरिएंटेशन कहता है कि क्या कंपेटिटर सेंटर्ड है या कस्टमर सेंटर्ड है इसके बेस पे कुछ फैसला करता है अब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन क्या है अगर ये कस्टमर सेंटर भी नहीं है और कंपेटिटर सेंटर भी नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कंपेटिटर सेंटर्ड कंपनी कौन सी होती है अब ये वाली जो कि कस्टमर सेंटर्ड नहीं है बट कंपेटिटर सेंटर्ड है कहता है कि जनाब कंपेटिटर सेंटर कंपनी इज वन दैट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम tracking competitors' moves and market share and trying to find strategies to counter them. This approach has some plus and minuses. On the positive side, the company develops a fighter orientation, watches for its weaknesses and position, and search out competitors' weaknesses. On negative side क्या है इसका weak point क्या है company becomes too reactive rather than carrying out its own customer relationship strategy. It base its own moves on competitors' move ठीक है फिर कस्टमर सेंटर्ड कौन सी होती है जो कि ना ही कंपेटिटर है और ना ही ये है ये तो है ठीक है कस्टमर ओरिएंटेड ये सेकंड वाली है ये कस्टमर को तो फॉलो कर रही है बट कंपेटिटर्स को फॉलो नहीं कर रही कस्टमर्स के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड है फोकस मोर ऑन कस्टमर डेवलपमेंट इन डिजाइनिंग इट्स स्ट्रेटजीज clearly customer centered company is in a better position to identify new opportunities and set long run strategies that make sense by watching customer needs, it can decide what customer group and what emerging needs are the most important to serve. Then it can concentrate its resources on delivering superior values to the target customers. मार्केट सेंटर्ड कौन सी होती है आपकी ये लास्ट वाली है जिसमें कस्टमर यस है और कंपेटिटर भी यस है मार्केट सेंटर कहता है कंपनी डेट पेज बैलेंस्ड अटेंशन टू बोथ कस्टमर एंड कंपेटिटर्स इन डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक और हमारी रह गई है ये वाली प्रोडक्ट ओरिएंटेड ये ना कस्टमर्स को फोकस कर रही है और ना ही अपने कंपेटिटर्स को फोकस कर रही है जस्ट लाइक डल ठीक है चैप्टर 19 है ग्लोबल मार्केट प्लेस ग्लोबल मार्केट्स क्या है ग्लोबलाइजेशन क्या है ठीक है many American companies now have made the world their market ठीक है अरब के हाथ में आईफोन ठीक है
ग्लोबल मार्केट होती क्या है? अ फर्म that by operating in more than one country gains R&D, production, marketing, financial advantage in its cost and reputation that are not available to purely domestic competitors. ठीक हो गई ना? अभी आपकी ग्लोबल फर्म है तो ये इतने ज़्यादा अहम कोई नहीं है, आपका भी ना टाइम ज़ाया करें। इकोनॉमिक कम्युनिटी देख लें। इंडिकेटर्स ऑफ मार्केट पोटेंशियल, इसने कुछ ना वो जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स दी हैं। ठीक है। कुछ डेमोग्राफिकल है, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर है, कुछ पॉलिटिकल और कुछ सोशल। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे आपने किस मार्केट में जाना है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली बात है। ठीक है। जॉइंट वेंचर, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट में आप लोग जानते हैं कि आप अपने कंट्री में रह के एक्सपोर्टिंग फॉरेन मार्केट बाय सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वंस कंपनीज होम कंट्री ऑफन विद लिटिल मॉडिफिकेशन। तो जॉइंट वेंचर में आप किसी बायर फॉरेन कंपनी के साथ मिलके काम करते हैं। लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी है, जॉइंट ओनरशिप भी है। फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपकी असेंबली फैसिलिटेशन है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। ठीक है। जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन कहते हैं एंटरिंग फॉरेन मार्केट बाय जॉइनिंग विद फॉरेन कंपनी टू प्रोड्यूस और मार्केट आ प्रोडक्ट और सर्विस। लाइसेंसिंग में क्या होता है? एंटर अ फॉरेन मार्केट थ्रू डेवलपिंग एन एग्रीमेंट विद द लाइसेंसिंग इन द फॉरेन मार्केट में आप लाइसेंस ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट Contract manufacturing क्या है? A joint venture in which a company contract with manufacturer in a foreign market to produce its product or provide its services। और मैनेजमेंट में क्या होता है? जॉइंट वेंचर इन विच अ डोमेस्टिक फर्म जो है बाहर के मुल्क की सप्लाइज द मैनेजमेंट how to how to a foreign company that supplies the capital, the domestic firm export management service rather than a product। जैसा कि हम कॉल सेंटर में वगैरह कर रहे हैं। तो ये लास्ट कुछ चैप्टर थे, मैंने स्किप नहीं करवाए, बस मैं इनकी मेन मेन हेडिंग्स करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हैं। जॉइंट ओनरशिप ये है कि दो या दो से ज़ायद लोग मिलके किसी फर्म को चला रहे होते हैं, चाहे एक पाकिस्तानी है फॉरेनर है। A cooperative venture in which a company creates a local business with investors in a foreign market who share ownership and control। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप लोग जानते हैं, एफडीआई। फिर ये आपके वही प्रोडक्ट अडॉप्शन है, स्टेजेस हैं, प्रमोशन, ये 4 पीस के बारे में बात कर रहा है। प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये आपने देख लेने हैं। फिर लास्ट चैप्टर आता है हमारे पास, दैट इज़ अबाउट, कहाँ चला गया? सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स का आपने अपने एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखना है। सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होती है? सस्टेनेबल मार्केट कहता है सोशली एंड एनवायरमेंटली responsible marketing that meets the present needs of consumers and businesses while also preserving or enhancing the ability of a future generation to meet their needs। कि ये ना हो कभी हम रिसोर्सेज जो हैं उनको फिनिश कर दें, हमारे फ्यूचर जनरेशन रह जाए। सस्टेनेबल मार्केटिंग में कहता है कि यहाँ पर आप नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स अभी भी हैं जो फ्यूचर की हैं, नीड्स ऑफ बिजनेस नाउ एंड फ्यूचर। ठीक है। अब मार्केटिंग कंसेप्ट है, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है, स्ट्रेटेजिक है, सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल मार्केटिंग आपके बिजनेस का भी फ्यूचर है, आपके आने वाली नस्ल का भी फ्यूचर है। ठीक है। जबकि ये जो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है ये बिजनेस का तो अभी का है, बट कंज्यूमर्स की फ्यूचर नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है कि आप कंज्यूमर्स की करंट नीड्स को मद्देनज़र रख के जो करंट बिजनेसेस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है कि बिजनेस का फ्यूचर, कंज्यूमर्स का भी अभी जो है प्रेजेंट है उसको डील कर रहा होता है। तो इसकी डिफरेंट आगे इसने बताई होंगी। ठीक है।
एक- फिर कंज्यूमरिज्म ये क्या होता है ये एक एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है सिटीजन्स की एंड गवर्नमेंट एजेंसीज डिजाइन टू इम्प्रूव द राइट्स एंड पावर्स ऑफ बायर इन रिलेशन टू सेलर, जैसा कि कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी उसी से ही है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, इसमें आपका कस्टमर जो है वो प्रायोरिटी होती है। कंपनी शुड व्यू एंड ऑर्गेनाइज इट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोसाइटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है आपकी, ये सोसाइटल क्लासिफिकेशन सोसाइटल मार्केटिंग होती क्या है। कहता है कंपनी शुड मेक मार्केटिंग डिसीजन बाय कंसिडरिंग कंज्यूमर्स वांट्स, द कंपनीज रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर्स लॉन्ग रन इंटरेस्ट एंड सोसाइटल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इसने बताया इन इमीडिएट सेटिस्फेक्शन उनको लो हाई, जबकि बेनिफिट जो है लो और हाई। अब सैलूटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डेफिशिएंट प्रोडक्ट्स इसमें ये है कि इनको कंज्यूमर को लॉन्ग रन बेनिफिट लो हो रहा है, जबकि इमीडिएट सेटिस्फेक्शन भी इसमें कहता है कि लो है। अगर हम इसकी देखें डेफिनेशन तो ये लेफ्ट साइड पे कहता है प्रोडक्ट्स दैट हैव नीदर इमीडिएट अपील नॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। फिर प्लीजिंग प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं आपकी राइट साइड पे, जिनका हाई और करंट तो सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा लेकिन लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्ट्स दैट गिव इमीडिएट सेटिस्फेक्शन बट मे हर्ट कंज्यूमर इन द लॉन्ग रन, जैसा कि हमारी ये बेवरेजेस वगैरह होती है। फिर सैलूटरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जिनका आपको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन तो नहीं है लेकिन आपको बेनिफिट ज़्यादा है। प्रोडक्ट्स दैट हैव लो इमीडिएट अपील बट मे बेनिफिट कंज्यूमर इन द लॉन्ग रन। फिर डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जिनका दोनों हाई है, अभी भी सेटिस्फेक्शन है और लॉन्ग टर्म भी है। प्रोडक्ट्स दैट गिव बोथ इमीडिएट सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग रन बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। चलें जी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत तलब काम होता है मेरा भी। इवन के मार्केटिंग को कवर करना आसान काम नहीं था मेरे लिए पूरी बुक को, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, तो आप इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें लाजमी तौर पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको कमी तो नहीं रही हमारी तरफ से। ठीक है, अब ये स्वाट एनालिसिस है। अच्छा, फिर फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, टोटल कास्ट, कास्ट प्लस रेलिवेंट कास्ट, मार्कअप, ये सारी चीज़ें हमारी हुई पड़ी हैं किसी न किसी सब्जेक्ट के वाले से। इन्वेंट्री टर्नओवर है, आरओआई टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी फाइनेंस की टर्म्स है। वर्कलोड मेथड क्या है, एन अप्रोच टू डिटरमिन sales force size based on the workload required and the time available for selling। तो ये कैरियर्स इन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, चैप्टर तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मार्केटिंग को बेहतरीन तरीके से कवर करें। नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह ऑडिटिंग को पकड़ते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आपका जानने वाला हो तो लाजमी तौर पर रेफ़र करें, हमारी एडवर्टाइजमेंट उन्हें भेज दिया करें। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मेरे बिहाफ पे आप कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।